Hello and welcome. On 8th of July, we conducted a webinar for Export Promotion Council for Handicrafts with the title The 3C Challenges in COVID Times. Here we looked at what can be done by companies, especially in medium, small, and micro sector, to work on improving their demand, cost, and cash flow related areas. Since this video is a webinar recording, it is in mixed language, Hindi and English. Also, there might be some portions where the audio and the video may be a little hazy because of the internet issues. These are excerpts, and we thought it would benefit a larger audience, so here we are. So go ahead and enjoy the video. Happy learning. The pandemic, COVID-19, has actually dented economies worldwide gravely. But you know what? Every crisis also presents an opportunity. In fact, Winston Churchill had gone in to say, why waste a perfectly good crisis? And here are some of the opportunities that you can draw out of the current concerns you have. So let's look at some of them. So for example, right now, we know the demand is volatile. Nobody knows what kind of demand will pick up. If you look at the flip side, while it looks like our demand is going to go down, there's an opportunity. When demand is very high, typically anything sells. But when demand is low, it is a time for you to gain market share from those who are not that strong. So the strength of what we can do can get tested here. And if you play it right, most of the times customers become so discerning that they will not be ready to buy anything and everything, which means if you play your cards right, there's a possibility that you can gain market share. Another thing is, we see that we expect that costs will increase. Not only because of shortage of materials, it's also because labor will be short. It's also because there'll be extra effort that will be put in just to maintain the same set. So the amount of sanitization that needs to be done, the amount of PPEs and other expenses which were earlier not there, they come in. Now, this gives us an opportunity to reduce cost and effort. You know what? There are times when we don't really recognize something that needs to be. So we can look at it this way, that this is a time when we don't have an option. So we can build a strong business which has lower cost and effort. Similarly, there's also an expected problem of restricted cash flow. With money going out of circulation, there's a possibility that there'll be less and less cash, which means our suppliers will not be able to pay us. We will not be able to pay our suppliers very easily, and customers may not be able to pay us very easily, which also gives us an opportunity to innovate and build efficient supply chains. And last and not the least, we expect labor shortage, which further bolsters what we said. We need to reduce cost and effort. So if you really see, our options at this point are either we give up, या तो हम ये कहते हैं कि देखो जो हो रहा है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, we just live with it, or we make the best use of this situation. So what we will be discussing today, आज हम क्या इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम ये देख रहे हैं कि what is it that we can do so that even in a crisis like this, I can come out shining, we can come out winners. And that's what we are going to look at. Now, I understand हम में से काफी सारे लोगों ने, maybe all of us would have been in class 5th or 6th at some point of time, if I'm correct. और अगर हम उस क्लास में रहे हैं, तो हमने बिजनेस का सबसे पहला प्रिंसिपल, the very first thing, the very first formula that is taught to us, we would have heard this, which is profit is nothing but price minus cost. इसको इस तरीके से लिखा जाता था, P is equal to SP minus CP. Profit is equal to selling price minus cost price. Now, this continues to be the fundamental of our business. If I have to grow profits, I have two things that I have to look at. Price. Now, the price is something that is not in our control really. It's in the control of customer. So if you really see, what we need to control here is customer demand. If we work on demand well, if we capture the demand well, we will be able to really increase our prices. You would have seen, even if you go to buy a shirt, for some particular shirt,
you are ready to give a higher price compared to the other shirt, even though they might serve the same purpose, but you are still ready to give more value or more money. So if we work on the demand right, we can increase the price fast. And then when you look at cost, obviously the operation cost, the OPEX is one part of it. But एक part ऐसा है जो इसमें मिस हो जाता है. Many a times we miss out one part which we don't take into consideration. ये बिजनेस चलाने के लिए हमको कैपिटल चाहिए होती है और वो कैपिटल बोरो करके हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. So not only is there an operational cost, there is also the cost of capital which occurs to us as cash flow. So if we really want to run a profitable business, these are the three things that we need to focus on: demand, cost, and cash flow. Now, what I'm going to tell hereafter is not rocket science. ये बहुत simple चीज है और ऐसा भी नहीं है ये कोविड की वजह से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. ये ऐसी चीजें हैं, ये हमेशा से थी. It is just that कि अभी तक हम इन पे ध्यान इतना नहीं दे रहे थे, बट अभी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. If we don't work on these three areas, life can get very, very tough. So either we call it a problem or we call it an opportunity. We at BizCraft, we call it an opportunity, and we will move on as to how to harness this opportunity. So let us look at all of them one at a time. सबसे पहले हम customer demand को देखते हैं. Now you would know कि जब when the demand is high and the supply is less, तो कुछ भी बिकता है. इसका मतलब है लोग कुछ भी लेने को तैयार होते हैं, कुछ भी चीजें ले जाते हैं. That is a normal situation. But when the demand is not very high, then people start picking कि उनको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है. This is also the opportunity for us to decide कि हम अपनी demand को कैसे manage करें. और इसके लिए हम 3 सवाल पूछते हैं. There are 3 questions that we want to answer here. First one is, who is our customer? कौन है जिसको हम बेचना चाहते हैं? अगर हमने हर किसी को बेचने की कोशिश करी तो सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी और हमारे पास बहुत ऐसी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी जो बिक नहीं रही. सेकेंड क्वेश्चन इज, जिसको हम बेचना चाहते हैं उसको क्या चाहिए? और तीसरी है, जो हम बेच रहे हैं वो बाकी और भी तो लोग बेच रहे हैं, तो वो मुझसे ही मटेरियल क्यों खरीदेगा? एज अ बिजनेस अगर हम ये 3 चीजें आंसर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, वी विल बी एबल टू रन फास्ट एंड मेक आवर कस्टमर डिमांड गुड फॉर अस अगेन. और इन 3 चीजों को हम कहते हैं, पहला है कस्टमर सेगमेंटेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि हम किस कस्टमर को केटर करना चाहते हैं. जैसा मैंने कहा, इफ यू वांट टू बी गुड फॉर एवरीबॉडी, यू माइट एंड अप नॉट प्लीजिंग एनीबॉडी. वो लोग जो सबको खुश करना चाहते हैं, कभी कभी वो सबको खुश तो नहीं कर पाते हैं, इनफैक्ट ज्यादा लोगों को दुखी कर लेते हैं. सो पहली चीज इसमें देखनी है, आपका जो कस्टमर सेगमेंट है वो शार्पली टारगेटेड होने चाहिए. शार्पली टारगेटेड का मतलब है जिनकी एक ही तरह की रिक्वायरमेंट है, जिनका टेस्ट एक तरह का है. बिकॉज तब क्या होगा, जब आप एक ही तरीके का टेस्ट केटर कर रहे होगे तो आपके पास चांस ज्यादा होगा कि आप उनकी नीड्स को फुलफिल कर सको. लेकिन जस्ट बिकॉज वो टेस्ट आपको मिल गया है कि आप किसको केटर कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा सही है. आपको ये भी देखना होगा कि क्या वो आपको पैसे देगा. उस टेस्ट का इकोनॉमिक स्केल आपको सूट करता है या नहीं सूट करता है. आप उसमें उस टेस्ट में बेच करके आप अपना पैसा रिकवर कर पाओगे या नहीं. और तीसरा पार्ट है, आज तो रिकवर कर लोगे, पर आज जो कैपेबिलिटी बिल्ड करोगे उसका फ्यूचर में यूज होगा या नहीं, तो उसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है. इसकी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम ज्यादा फोकस अपने कॉस्ट एरिया पे करेंगे. बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू कीप दिस इन माइंड. ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका कस्टमर सेगमेंट होता है उसके बेसिस पे आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिसाइड होता है. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या आता है, आप कौन कौन से किस तरह के प्रोडक्ट रखोगे, और इसमें आप देखते हो आपको कितनी वैरायटी चाहिए, क्या प्राइसिंग चाहिए, और आप कैसे सर्विस करोगे. और देखने में तो ये डिमांड का हिस्सा है, बट ये आपके कॉस्ट पे बहुत जोरदार इंपैक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, जितनी ज्यादा आप वैरायटी रखोगे, आपको लगता है कि आपको ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, बट क्या होगा, उतना ही आपका स्टॉक बढ़ेगा, उतना ही आपके SKUs बढ़ेंगे. So what will happen if you keep too much variety? Then you will end up blocking money, you will end up blocking cash flow. And जब आप बहुत वैरायटी रखते हो तो एक एक प्रोडक्ट का स्केल भी कम हो जाता है, तो जो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलनी है वो भी नहीं मिलती है, तो जो कॉस्टिंग है वो भी आपके लिए बढ़ जाती है. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि जब आप ये सेट कर रहे हो कि आपको डिमांड कहां से जनरेट करनी है,
तो आप अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखो। अगर आप बहुत छोटा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रखोगे तो ऑब्वियसली सेल नहीं होगी, बिकॉज कस्टमर को वो नहीं मिलेगा जो उसको चाहिए। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रख लिया तो यू विल बी सैडल्ड विद अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री। आपने कई बार देखा होगा दैट यू एंड अप विद ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, जिसको हम सेकंड्स में या हाई डिस्काउंट देकर के हमको निकालना पड़ता है। ये सारी चीजें ना सिर्फ हमारा कैश ब्लॉक करती हैं, they also reduce the amount of return that is there. So ये severely damage करती हैं हमारी profitability. But final piece is the most important, और यही आज का main topic है। जब हमको मिल गया कि हम किसको और क्या देना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है why will that person buy from me rather than from my competitor? And this is the value proposition. इस value proposition में हमको ये पता करना है कि उनकी actual need क्या है, चाहते क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेट्स टेक अप, अगर कोई मुझसे इस वजह से खरीद रहा है दैट दे वांट एन ऑनेस्ट इंडियन ट्राइबल लुक, तो उनके लिए ट्राइबल लुक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई अगर यूटिलिटी के लिए देख रहा है, मान लीजिए आई एम मेकिंग ब्रासवेयर, और उस ब्रासवेयर में या आई एम मेकिंग सम ग्लासवेयर, और उसमें प्राइमरली माय कस्टमर इज लुकिंग फॉर कि मुझे यूटिलिटी चाहिए, तो वो यूटिलिटी को मैं देने में ज्यादा पैसे खर्चा करूं, डिजाइन में कम खर्चा करूं। तो ये जो ट्रेड ऑफ्स है ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली वो उनको जो चाहिए, अगर वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं उसको सस्ते में नहीं बना पाऊंगा, इसका मतलब मैं उस मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है वैल्यू। और वैल्यू क्या होता है? जो कस्टमर को चाहिए। सो लेट अस लुक एट व्हाट द वैल्यू इज, एंड बिफोर दैट ये 6 कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ये 1 घंटे का टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट आई वांट यू टू नो कि क्या क्या चीजें हैं, और उसमें से हम पिक करेंगे कि हमको क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहला काम होता है कि हमको पता करना है कि कस्टमर वैल्यू क्या करता है और उसको वेस्ट से कैसे सेपरेट करेंगे। मैं इसके ऊपर आपको कुछ आगे कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे ही आपको पता चल जाता है क्या वैल्यूएबल है और क्या वैल्यूएबल नहीं है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको मेजर करना शुरू करें। इमेजिन करिए एक क्रिकेट का गेम हो रहा है और आपको ये नहीं पता कि क्या स्कोर है, क्या रन रेट चाहिए। उस गेम में कोई मजा नहीं है, आप कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे उस जगह पर। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कॉस्ट सेव करनी है, अगर एज ए लीडर आप अकेले हो जो उस कॉस्ट के पीछे भाग रहे हो, and the rest of your organization, your employees are not worried about it, what do you think you will be able to save? It will be very small. So it is important that you make the cost measurable. जितना ज्यादा आप measure करते रहेंगे उतना आपको फायदा होगा। You would have known if you've ever attempted weight loss, अगर आपने कभी weight loss attempt किया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप regularly measure करते हो तो आपको पता चलता है अभी इतना और करना है, अभी इतना और करना है, and that is what prompts you to move forward. So measurement is very important if you want cost optimization to stick. अगर आप चाहते हैं कि cost optimization आपके कंपनी में रेगुलरली होता रहे और सारे करते रहे, measurement बहुत important हो जाता है। ये भी मैं आगे टेक अप करूंगा। इसके बाद ये है कि just because मैंने waste देख लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा काम हो गया। waste देखने का मतलब है मुझे बीमारी पता चल गई, लेकिन वो बीमारी जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि वो क्यों हुई है, वो कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जिनकी वजह से ये बीमारी हुई है, तब तक मैं इसके ऊपर काम नहीं कर पाऊंगा। इसको इस तरीके से देखिए कि कोई भी अपने घर से ये सोच करके नहीं निकलता है कि आज मैं अपना काम खराब करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, रास्ते में कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं कि जिस चीजों को हम बदल नहीं सकते, तो क्या होता है, लोग उसका ऑल्टरनेट तरीका निकाल लेते हैं। जैसे मुझे मालूम है कि मैं भेज नहीं सकता, मैं एक छोटा सा कंस्ट्रेंट बताता हूँ। मुझे मालूम है कि अगर मुझे इंडिया से साउथ अफ्रीका कंसाइनमेंट भेजना है तो मेरे पास कंस्ट्रेंट आ गया कि मैं अगर छोटा छोटा करके एक एक पीस भेजूंगा तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो मैंने उसका ट्रेड ऑफ क्या किया, मैंने उसका ट्रेड ऑफ कर लिया कि मैं एक बड़ा कंटेनर स्टफ करके भेजूंगा, और क्योंकि मैं बड़ा कंटेनर स्टफ करके भेज रहा हूं तो मेरे पास इन्वेंट्री भी इकट्ठा होती जाएगी। जैसे जैसे मेरे पास इन्वेंट्री इकट्ठा होती जाएगी, मुझे उस इन्वेंट्री को रखने के लिए स्पेस भी चाहिए, मैं उस पर खर्चा भी करूंगा, इन्वेंट्री के लिए कैश फ्लो मेरा ब्लॉक होगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन। नाउ देखने में लगता है कि ये कंस्ट्रेंट तोड़ा नहीं जा सकता, दिस इज कंस्ट्रेंट दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन। बट अगर हम थोड़ा इनोवेटिवली सोचिए, हम जैसे ईपीसीएच की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास हम एक ज्वाइंट फैसिलिटी बना लें which is transportation to certain focus countries. I'm just giving an example. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज से शुरू कर सकते हो,
तो ऐसा हो सकता था कि जैसे जैसे एक कंटेनर लोड अलग अलग प्रोड्यूसर्स से इकट्ठा होता जाए, हम उस कंट्री में भेजते जाए. There is a possibility. I'm not saying that you do it right now, but that is how we need to think. जो वेस्ट जनरेट हो रही है या जो कॉस्ट आ रही है वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि लोग खराब करना चाहते हैं, वो इसलिए आ रही है क्योंकि कोई कंस्ट्रेंट है जो हम तोड़ नहीं पा रहे हैं. तो वैल्यू स्ट्रीम एक तरीका है, वैल्यू स्ट्रीम की स्टडी एक तरीका है जिससे हमको ये पता चल सकता है कि वो क्या कंस्ट्रेंट्स हैं और हम उन पे काम कर सकते हैं. अगला काम है स्टैंडर्डाइज करना. जितनी वैरायटी आप रखोगे, जितनी अलग अलग तरीके से चीजें करोगे, उतनी गड़बड़ होने की चांसेस रहेंगे. तो स्टैंडर्डाइज करना बिल्कुल बेसिक है. हम स्टैंडर्डाइज करके कॉस्ट कम कर सकते हैं, कंट्रोल्स को विजुअल बना करके, जिससे कि अगर कोई भी गलती होता हुआ देखे तो तुरंत रिएक्ट कर सके. जैसे अगर आपने देखा होगा कि बहुत जगह पर ऐसा होता है कि हम अगर गड़बड़ कर रहे होते तो हमको पता चल जाता है कि गड़बड़ हो रही है. एक एग्जांपल आप देखेंगे, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं और एक स्टार मार्क फील्ड है, अगर आपने उसको छोड़ दिया और एंटर कर दिया तो वो तुरंत बता देता है ऑल द फील्ड्स आर नॉट पुट इन. इसको आप इसका एक पार्ट विजुअल कंट्रोल है जो कि बता रहा है कि भरा नहीं है, और दूसरा पार्ट है मिस्टेक प्रूफिंग. मिस्टेक प्रूफिंग मतलब हमने गलती होने से ही रोक दिया, अब ये गलती हो ही नहीं सकती. फॉर एग्जाम्पल, कभी आप अपना सिम कार्ड देखें तो वो इस तरीके से कटा होता है कि वो सिम कार्ड फोन में एक ही तरह से जा सकता है, अलग तरह से जा ही नहीं सकता. ये चीजें हैं जो मिस्टेक प्रूफिंग है. तो इसमें से पहली 3 चीजों को मैं डिटेल में आज टेकअप करूंगा, बाकी आपके इंफॉर्मेशन के लिए है जिसको आप यूज कर सकते हैं. बट वैल्यू को देखने का जो तरीका है, विच मीन्स वैल्यू को वेस्ट से अलग देखना, उसका मेजरमेंट करना, और ये देखना कि ये जो वेस्ट आ रही है ये किन कंस्ट्रेंट्स की वजह से आ रही है. ये 3 चीजें हम प्राइमरली फोकस करेंगे आज के सेशन में. तो सबसे पहले देखते हैं वैल्यू और वेस्ट क्या है. डेफिनेशन से शुरू करते हैं. वैल्यू की डेफिनेशन है व्हाट कस्टमर नीड्स एंड इज विलिंग टू पे फॉर. वो चीजें जो कस्टमर को चाहिए और वो उसके पैसे देने को तैयार है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मर्सिडीज चाहिए हो सकती है, लेकिन अगर मैं उसके लिए पैसे देने को नहीं तैयार हूं तो वो मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है. यही वजह है कि मर्सिडीज, हमको मालूम है कि हाई क्वालिटी गाड़ी होते हुए भी मारुति सुजुकी ऑल्टो ज्यादा बिकती है. क्यों? क्योंकि वो वैल्यू डिलीवर करती है, व्हाट कस्टमर नीड्स एंड व्हाट दे आर विलिंग टू पे फॉर. अगर हम देखें हमको कैसे पता चलेगा कि कोई एक्टिविटी वैल्यू एडेड है या नहीं, तो पहली चीज है प्रोडक्ट में कुछ चेंज होना चाहिए. अगर मैंने प्रोडक्ट को ऐसे का ऐसा ही उठा करके दे दिया, जैसे ट्रेडिंग, उसमें कोई वैल्यू चेंज हुई नहीं, मैंने एक जगह से उठा करके दूसरी जगह को दे दिया. दूसरी है कस्टमर को उसकी जरूरत होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ग्लास वेयर बना रहा था और ग्लास वेयर साइड से चिटक गया. नाउ दिस इज अ चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक. प्रोडक्ट में थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन ये क्रैक चाहिए नहीं था कस्टमर को, डिफेक्ट बन गया, तो इसका मतलब ये नॉन वैल्यू एडेड होगी. और लास्ट चीज है कि ये पहली बार होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि जो हम रिवर्क करते हैं ना, कि हमने पहले बना लिया, फिर बाद में उसको घिस करके सही कर लिया, फिर चेक किया, चेक करने के बाद पता चला इसकी पॉलिश और होनी है, ये सारी एक्टिविटीज जो एक बार सही नहीं कर पाते हैं, ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. आपको बता सकता हूं, जब पहली बार मुझे ये सिखाया गया था आज से 23 साल पहले, जब पहली बार मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई थी और मुझे वैल्यू की डेफिनेशन बताई गई थी, तो मुझे ये पता चला था कि ज्यादा से ज्यादा काम जो मैं कर रहा हूं या ज्यादा से ज्यादा काम जो हो रहा है वो एक्चुअली नॉन वैल्यू एडेड है, वो एक्चुअली वेस्ट है. और ये काफी बड़ा शॉक होता है. तो शुरुआत में कोई मानने को नहीं तैयार होता है कि इतनी सारी वेस्ट हमारे सिस्टम में. तो वेस्ट क्या होता है? वेस्ट ये है कि कस्टमर आपको तब तक पैसे देगा, उसके लिए कस्टमर को चाहिए नहीं, पर वो तब तक पैसे देगा जब तक उसके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं. जिस दिन आपसे बेहतर ऑल्टरनेट ऑप्शन मिल गया, उस दिन कस्टमर आपको पे करना बंद कर देगा. नाउ आगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है और हम आज इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये सबसे बेसिक है. इस तरह की वेस्ट होती है जो हमको दिखाई भी नहीं चल देती हैं, और दिखाई देती है तो हम मान भी नहीं पाते हैं कि ये वेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन. ये टर्म्स मैं अभी आपको समझाऊंगा नहीं, बिकॉज इसके लिए काफी लंबा टाइम लगता है. बट आप ये समझो, ये वो वेस्ट हैं जो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं. ये हमको बताते हैं कि गड़बड़ कहाँ हो रही है. ये वो है जहां मुझे बुखार आ रहा है, मुझे ब्रेथलेसनेस हो रही है, ये वो सिम्टम्स हैं. वेस्ट सारे सिम्टम्स हैं. ये सिम्टम्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो हमने वैल्यू देनी थी
वो किसी कंस्ट्रेंट की वजह से हम वैल्यू दे नहीं। अगर मैं देखूं तो सबसे पहला काम आपके पास क्या है, आगे की कोई भी चीज आपके लिए काम नहीं करेगी अगर आप वैल्यू और वेस्ट में डिफरेंशिएट ना कर पाए। ऐसा कहा जाता है कि जितना टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं फैक्ट्री में, 5% से कम टाइम वैल्यू एडेड एक्टिविटी पे होता है। 95%, 95% और मोर टाइम इज स्पेंट ऑन दोज एक्टिविटीज जो कस्टमर को या तो चाहिए नहीं, या चाहिए पर वो उसके लिए पैसे देने को नहीं तैयार। तो जब तक हम वैल्यू और वेस्ट को डिफरेंशिएट करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम आगे की चीजें नहीं लगा पाएंगे। बिकॉज कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ये मुझे इससे पता चलता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मेजर करना शुरू करते हैं। और आज हम क्या मेजर देखने वाले हैं कि जो वेस्टफुल एक्टिविटीज जो नोन है, जब हम गड़बड़ करते हैं, जब हम डिफेक्ट्स बनाते हैं, तो बहुत सारी चीजें छुप जाती है जो हम देख ही नहीं पाते। वो क्या है, वो 4 पार्ट में है। पहला है एक्सटर्नल फेलियर। फॉर एग्जाम्पल, हमने माल बना करके भेजा और कस्टमर ने कहा ये तो सही नहीं है, कंप्लेंट आ गई या हमारे पास पेनल्टी लग गई। इसमें क्या हुआ, हमारे पैसे तो गए, साथ साथ हमने भेजने के लिए जो लॉजिस्टिक में कॉस्ट डाली थी, जो हमने टैक्स दिया था, ये सब कुछ चला गया और आगे से हो सकता है ऑर्डर भी ना मिले। ये सबसे खराब फेलियर है। इससे बचाने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग अंदर चीजों को चेक करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई फेलियर हो रहा है, कोई गड़बड़ हो रही है, तो हम अंदर ही पकड़ लें। इंटरनल फेलियर में हम क्या करते हैं, हमको चीज मिल जाती है, जैसे आपने इंस्पेक्शन किया तो आपको चीज ये सही नहीं आ रहा है, तो आपने तुरंत उसको 4 लोग लगाए, वर्क कर दिया। कुछ चीज जो ठीक नहीं हो सकती है उसको स्क्रैप कर दिया या सेकंड्स में बेच दिया, डाउनग्रेड कर दिया। लेकिन आप इन सारी चीजों को देखें तो इन सब में क्या हो रहा है, हमारे ऊपर नेगेटिव कॉस्ट इंपैक्ट आ रहा है और हमको कहीं से ये पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारे जब हम अपना बजट बनाते हैं तो हमको कहीं से दिखाई नहीं देता कि हम इसका क्या करने हैं। तो ये सारे कॉस्ट इंपैक्ट्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टिपिकली एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ अप्रेजल लगाते हैं, हम इंस्पेक्शन और टेस्टिंग लगाते हैं, 3-3, 4-4 बार इंस्पेक्ट करते हैं। बट आप ये सोच करके देखिए कि अगर इंस्पेक्शन इतना ही पावरफुल होता तो एक भी चीज कभी कस्टमर के पास नहीं पहुंचनी चाहिए थी और एक भी चीज कभी इंटरनली रिवर्क नहीं होनी चाहिए। जो सबसे अच्छी कॉस्ट होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, प्लानिंग, ऑप्टिमाइजिंग एंड एरर प्रूफिंग, जिससे गलती ना हो। आप वो पैसा जो गलती ना होने में लगाते हो, वो पैसा आपके लिए एक्चुअली काम करता है। बाकी जितना भी पैसा है जो आप गलतियां ढूंढने के लिए पैसा लगाते हो, वो तभी लगाते हो ना जब आपको पता है कि इसमें गलती होगी, आपको मालूम है गलती होगी और मुझे पकड़ना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट ही ऐसा होता है या आपका प्रोसेस ही ऐसा होता कि गलतियां हो ही ना रही होती, इफ यू जस्ट डिड नॉट हैव एनी मिस्टेक्स, you would not require appraisal cost. If you did not have any mistakes, there will not be an internal failure. और जब इंटरनली फेलियर नहीं हो रहा है तो एक्सटर्नल फेलियर होने का चांस ही नहीं। सो इफ यू रियली सी, इस स्पेक्ट्रम में सबसे बुरी कॉस्ट सबसे ऊपर है और सबसे अच्छी कॉस्ट सबसे नीचे है। टिपिकली एक एवरेज ऑर्गेनाइजेशन, एवरेज परफॉर्मर्स जो है वो यहाँ पर काम करते हैं, जहां पर हम चेकिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और रिवर्क, स्क्रैप या डाउनग्रेड करके हम अपनी एक्सटर्नल फेलियर बचाते हैं। बट आपके सिस्टम में इंटरनल फेलियर और अप्रेजल कॉस्ट अभी भी वेस्ट की तरह मौजूद है। अगर आप उसको वेस्ट की तरह नहीं देख पाएंगे तो आपको हमेशा लगेगा ये तो ऐसा तो होता ही है, हमारे यहाँ इतनी कॉस्ट तो आती है। बट वो सारी कॉस्ट है जो आप एक्चुअली हटा सकते हो। जो नेक्स्ट फ्रंटियर है आपको कॉस्ट हटाने का, वो ये जगह है जहां आप इंटरनल फेलियर और चेकिंग की कॉस्ट को हटा सकते हो। तो लेट अस सी कि इसको हटाते हैं, वैल्यू स्ट्रीम कैसे होती है। ये थोड़ा सा इलैबोरेट मैंने सिंपली आपके लिए रखा है। जब आप शुरुआत करते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, आपको ये प्रोसेस ऐसे दिखाई देता है, एंड टू एंड। ये मेरा प्रोसेस है कि यहाँ पे मैंने रॉ मटेरियल डाला शुरुआत में और आखिरी में रॉ मटेरियल निकल आया। पहला काम हम करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे इसके पार्ट्स में। अगर मैं देखूं तो इसको इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो मैं एक जो सीधी पट्टी मुझे नीली दिखाई दे रही थी, आई हैव ब्रोकन इट into small parts which are different either operations or the part is sitting. Next step is आप उसको ब्रेक कर देते हो कि ये जो मैंने पार्ट्स बनाए हैं इसमें से कौन कौन सा पार्ट है जो कस्टमर जिसके लिए पैसा देने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लेट्स से पहला जो बड़ा पार्ट आ रहा है, आपने सबसे पहले रॉ मटेरियल मंगा करके रखा।
अब वो मटेरियल रखा हुआ है, जब तक हमारे पास ऑर्डर नहीं आता तब तक हम उसके ऊपर कुछ कर नहीं रहे। क्या ये वैल्यू एडेड है? ये बिल्कुल वैल्यू एडेड नहीं है, बिकॉज ना तो इसमें कोई प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है, पहला ही चीज फेल हो गई, और ना ही वो कस्टमर को चाहिए। दूसरा स्टेप हमने लिया, हमने कहा इसको इशू करना पड़ेगा, थोड़ी देर में इशू करेंगे, यहां से उठा करके दूसरी जगह पर ले। ये दूसरा स्टेप है जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ये भी नॉन वैल्यू एडेड है बिकॉज इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तीसरा स्टेप है जिसमें आपने उसके ऊपर मार्किंग करी कि मुझे इसमें से इतना कपड़ा काटना है, लेटर से ये आप गारमेंट का कुछ बना रहे हो तो इतना कपड़ा काटना है। अब ये जो मार्किंग करी तो प्रोडक्ट में कुछ चेंज हुआ और ये मेरे लिए वैल्यू एडेड था। इसी तरीके से हम सारी एक्टिविटीज को डिवाइड कर लेते हैं, क्या वैल्यू एडेड है, क्या नॉन वैल्यू एडेड है। जब आप टिपिकली इसको देखना सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वैल्यू एडेड बहुत थोड़ा होता है। ज्यादातर चीजें ऐसी होती है जो कस्टमर पे करने को तैयार नहीं होता। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको पता करना है कि इसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, हम क्यों ये रख रहे हैं, क्यों इतना माल रख रहे हैं, क्यों यहां से वहां ले जाने की हमको जरूरत पड़ रही है। और जो जो कंस्ट्रेंट्स हमको पता चलते जाएंगे कि ये कंस्ट्रेंट्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उन कंस्ट्रेंट्स को हम ब्रेक करते जाएंगे, उन तोड़ते जाएंगे। जब हम कंस्ट्रेंट्स को ब्रेक कर देंगे तो अगर आप देखें तो क्या होगा, वो स्टेप्स हट जाएंगे। जैसे ही हमारे स्टेप्स हटते हैं, इसका मतलब क्या बन रहा है हमारे लिए, हमको वो एक्टिविटी करनी नहीं है, तो उसके लिए जो लोग लगे थे वो बच रहे हैं, उसके लिए जो हमने अपने प्लांट में, में अपने वर्क प्लेस पे जो जगह अगर जगह है तो सकता है उस करके मैं उसको और प्रोडक्शन उसमें से निकाल सकता हूँ। ये पॉसिबिलिटी है मेरे पास। टाइम बच रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप देखो तो क्या होता है, अगर वो एक्टिविटी करने में आप टाइम नहीं स्पेंड करते तो आपका टाइम बचता, तो एक्चुअली जो आपकी बची हुई वैल्यू स्ट्रीम है वो क्या हो जाती, वो छोटी हो जाती। अभी यहाँ पे मैं मान के चला हूं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको मैं हटा पाया। मैं जितनी ज्यादा रेड पार्ट्स को हटा पाऊंगा उतना आपका प्रोसेस श्रिंक होता जाएगा, और जितना आपका प्रोसेस श्रिंक होता जाएगा आप ये समझो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी आ जाएगी जो हमने डिमांड में देखी थी, सर्विसिंग। जितना छोटा आपका लीड टाइम होगा उतनी आपकी फास्ट सर्विसिंग होगी, और ये आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है आप अपने कस्टमर को प्रॉमिस कर सकते हो जल्दी अच्छा माल देने का। तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी डिमांड बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि आप उसको प्रॉमिस कर सकते हो। आपके प्रोडक्ट कस्टमर को सूट कर रहा है, आपकी कॉस्ट कम हो रही है क्योंकि कम लोग लग रहे हैं इसी काम को करने में, और क्योंकि कम टाइम स्पेंड हो रहा है तो वो मटेरियल आपको जल्दी जल्दी रिटर्न्स दे रहा है, इसका मतलब आपका कैश फ्लो भी कम हो रहा है। सो जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर आप अपनी वैल्यू स्ट्रीम को सही से समझ करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, तो ये जो आपके तीनों चैलेंजेस हैं कोविड के, या कोविड ना भी होता, जो तीनों बिजनेस के चैलेंजेस हैं, which is customer demand, cost और cash flow. Just by studying the value stream, breaking the constraints, you will be able to do a much more efficient job. अगर आप देखो तो हम लोग चाइना की बात जरूर बहुत करते हैं कि इतना वहां से आ रहा है और कॉस्ट कम है। आप ये देखो, हम लोग अक्सर ये बातें करते हैं क्योंकि लेबर की हमारी प्रॉब्लम है, हमारे ईज ऑफ बिजनेस है, और मैं बहुत जगह एग्री करता हूं कि हाँ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन, जो चीज हमारे हाथ में है क्या हम एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं? और ये मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मैं ये वाली सिचुएशन फेस कर चुका हूं 2006 में। 2006 में मैं एक केमिकल कंपनी के लिए काम कर रहा था, और उस केमिकल कंपनी की एक प्रॉब्लम आ गई थी कि एक फाइन केमिकल था जिसको वो मार्केट में बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो चाइनीज काउंटर पार्ट था, और मैं आज की नहीं 2006 की बात बता रहा हूँ, they were not able to sell that chemical because the Chinese selling price was less than the costing of the product in the company. तो कंपनी को जितना वो कॉस्ट कर रहा था उससे कम में चाइना सेल कर रहा था, और हमने यही चीज एग्जैक्टली यही चीज लगाई, ये देखते हुए कि कहां पर, क्योंकि केमिकल्स है, पावर इंटेंसिव है, हमने देखा कहां कहां पावर हो रही है और कहां कहां नॉन वैल्यू एडेड है। हमको ये पता चला कि जो उनका लास्ट स्टेप था जहां पर वो एक्सट्रैक्शन कर रहे थे केमिकल का, वो एफिशिएंटली नहीं चल रहा था, वो 3 साइकिल्स में चल रहा था। जैसे ही हम उसको 3 साइकिल से हटा करके 2 साइकिल में ले आए
कॉस्ट 40% ड्रॉप हो गई और वॉल्यूम एकदम से राइज। तो मेरा आपको इन्विटेशन ये है कि दैट वी कैन कीप ऑन सेइंग कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। एटलीस्ट जो हम एज अ बिजनेस ओनर हम जो प्रॉब्लम एड्रेस कर सकते हैं पहले हम वो एड्रेस कर लें, फिर हम बाकी जगह पर जाकर के बात करें, बिकॉज इसके लिए तो कोई और ब्लेम करने वाला नहीं है, ये तो हम ही को करना है। सो लेट अस डू आवर वर्क, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क। देन देयर आर अदर थिंग्स जिसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, बट वो है स्टैंडर्डाइज, काम कैसे होना है, चेक कैसे होना है, और अगर गड़बड़ हो जाए तो क्या करना है। ये है वर्क स्टैंडर्ड और रिएक्शन प्लान। 5S ये मेरे लिए मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। स्टडीज ये बताती हैं एक पर्सन का 5 से 15% टाइम चीजों को ढूंढने में जाता है, जस्ट टू सर्च फॉर थिंग्स, कि चीज कहाँ रखी है। सिर्फ ढूंढने में 5 से 15%, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का सेटअप है, 5 से 15% टाइम सिर्फ चीजें ढूंढने में जाता है। 5S मुझे क्या हेल्प करता है, द टाइम स्पेंट इन सर्चिंग, उसको कम करता है। बहुत बार जिन लोगों को पता होगा 5S क्या होता है, जापानीज टर्म है, लोगों को लगता है ये हाउसकीपिंग है, ये सफाई का काम है। ये एक्चुअली सफाई का काम नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का काम है, चीजों को स्टैंडर्ड कर देने से। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप घर के अंदर घुसे, आपने चाबी कहीं पर रख, जब दोबारा आप कार लेकर के निकले तो आपको टाइम लगता है वो चाबी ढूंढने। आप क्या तरीका इस्तेमाल करते हो, आपने एक जगह बना दी चाबी की, कि जब भी आप घर के अंदर घुसोगे चाबी को वहीं डालोगे। जैसे ही आप ये काम करते हो, जैसे ही आपने अपने वर्क प्लेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो आपका जो सर्चिंग का टाइम था वो कम हो गया। तो 5S को उस नजर से देखना है, जो लोग जानते हैं 5S के बारे में। वंस अगेन ये छोटा सेशन है, मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स की डिटेल्स नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि कैसे कैसे आप अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। एंड फाइनली, जैसा मैंने बताया, विजुअल कंट्रोल्स और मिस्टेक प्रूफिंग। तो अगर मैं ये 6 कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी देखूं तो ये मेरे कॉस्ट पे काम करती है। बट जैसा आपने देखा, ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजी सिर्फ कॉस्ट पे काम करती है। फॉर एग्जांपल, वैल्यू स्ट्रीम को जब आप स्टडी करते हो तो ना सिर्फ वो कॉस्ट पे काम करती है, वो आपकी डिमांड को बढ़ाने में भी काम कर सकती है। ओके, सो अगर आप कंट्रोलिंग कैश फ्लो को देखो तो हमारे पास जो रेगुलर बिजनेस की चीजें हैं वो है अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल, जो हमारा पैसा मार्केट में फंसा है या जो हमने सप्लायर को देना है। ये तो आपको हमेशा ट्रेड ऑफ देखने होते हैं कि कहां पर अगर मैं हुंडी इस्तेमाल कर लूं तो मेरा कैश फ्लो बच जाएगा, कॉस्ट चली जाएगी। ऑप्टिमम कॉस्ट है वो देखने का, वो हमारा यहाँ बताने का पर्पस नहीं है। यहाँ बताने का एक मेन इंपॉर्टेंट पर्पस है इन्वेंट्रीज। और इन्वेंट्री को कम करने के लिए 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे मैंने आपको 6 स्ट्रैटेजीज बताई कॉस्ट के लिए, हम यहाँ 2 बड़ी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री को कम करने के लिए, कि जो आपका पैसा इन्वेंट्री में फंसा हुआ है उसको कैसे डील करें। तो पहली चीज है फ्लो। फ्लो का मतलब है कि जब जब आप का पार्ट बन रहा है, आप चीज बना रहे हो और उस प्रोडक्ट के ऊपर आप वैल्यू कुछ ऐड नहीं कर रहे हो, प्रोडक्ट बैठा हुआ है, वही इन्वेंट्री है। एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच में बैठा हुआ है, किसी के इंस्पेक्शन का इंतजार कर रहा है, इंस्पेक्शन के बाद रीवर्क का इंतजार कर रहा है। अगर आप देखो तो जहां जहां पर ये बैठा हुआ है आपका माल, वो सब जगह पर आप पैसा तो, कैपिटल के लिए तो आप पैसा पे ही कर रहे हो, इंटरेस्ट पे ही कर रहे हो, जगह के लिए पैसा दे रहे हो, लोगों के लिए पैसा दे रहे हो। तो पहला काम है कि अगर हम इसको फ्लो करें, अलग अलग जगह बनाने के बजाय अगर हम फ्लो करें। फॉर एग्जांपल, एक टिपिकल केस देखें अगर आप कि कैसे फ्लो करता है, तो पता चला पहले 2 दिन तक मटेरियल रखा रहा, फिर उसकी जो पहली कटाई छटाई करनी थी वो मैंने 11 मिनट में, उसके बाद दूसरी मशीन पे दूसरी शॉप में जाना था, लेटर से मैं इसको फर्नीचर मान के चलता हूँ, तो कटिंग हो गई लकड़ी की 11 मिनट में। अब जो दूसरी मेरी शॉप है जहां पर चीजें इकट्ठा होकर के नेल होकर के बननी है, वहां के लिए वेट कर रही है उस शॉप वाले जब लोग फ्री हुए, तो 2 दिन वो बैठा रहा, उसके बाद जाकर के वो नेलिंग टुगेदर हो गई, फिर वो बैठा रहा वार्निश के लिए। अब वार्निश जब होगी तब ये आगे बढ़ेगा, उसके लिए इंतजार किया, जब वार्निश वाला फ्री हुआ। तो अगर आप देखो तो जहां पर हमने एक्चुअली वैल्यू ऐड करने के लिए 35 मिनट लगाए, और ये सबका केस नहीं है, ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। If I take 35 minutes and for that 35 minutes, if I keep the material for 6 days, just imagine how much are we losing. अगर यही 6 दिन का काम अगर मैं 1 दिन में कर पाता तो मेरा फ्लो बहुत तेजी से बढ़ जाता, और जैसे ही मेरा फ्लो तेजी से बढ़ता,
आई वुड बी एबल टू हैव लेस कैश फ्लो बिकॉज इन्वेंट्री मुझे रखनी नहीं है, माल आता जाएगा और बाहर होता जाएगा, इनपुट आता जाएगा और बाहर होता जाएगा, तो मेरी जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। बट वहीं पर आते हैं कि कोई भी ये सोच करके नहीं आता कि आज मुझे इन्वेंट्री बढ़ानी है, तो इन्वेंट्री क्यों बढ़ जाती है? अगर आप देखो ये कुछ कारण है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल लेआउट, जब मैं फ्लो के हिसाब से लेआउट नहीं बनाता हूं, मेरे अलग अलग सेक्शन होते हैं, ये मेरा कटिंग सेक्शन है, ये मेरा शेपिंग सेक्शन है, एक तरीके की मशीन एक जगह रखी हुई, तो क्या होता है हमेशा बैच में चलता है मटेरियल, और जब भी मटेरियल बैच में चलता है, बैच का मतलब है मटेरियल रुका रहता है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। बट क्यों होता है? बहुत बार फंक्शनल लेआउट की वजह से मटेरियल रुका रहता है, लाइन बैलेंसिंग नहीं होती है, एक ऑपरेटर ने जल्दी काम कर लिया, दूसरे वाले ने अभी तक खाली नहीं हुआ है, तो ऑपरेटर खाली हो गया, उसने ज्यादा बना करके रख लिया, अब इसमें लाइन इम्बैलेंस हो जाती है, लाइन पे रख नहीं सकते हो, उसको हटा करके दूसरी जगह ले आना है, तो अब देखो क्या हो गया, लाने ले जाने का ऑपरेशन बढ़ गया एंड साथ साथ इन्वेंट्री बढ़ गई। सो दीज आर line balancing issues. Then there could be a bottleneck operation. कि एक ऑपरेशन की स्पीड कम है और बाकियों की ज्यादा है, तो उस एक की वजह से हम सफर कर रहे हैं, ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं, एब्सेंटिज्म हो जाता है। बट एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तब हमारी इन्वेंट्री आ जाती है। बिकॉज प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हर कोई ज्यादा से ज्यादा बनाए, लेकिन इस ज्यादा बनाने में अगर लाइन बैलेंस नहीं हुई तो जो बन रहा है वो बिकेगा नहीं, वो स्टोर हो जाएगा, और जब वो स्टोर हो जाएगा तो वहां पर इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, हमारा कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारा कैश फ्लो नहीं होगा, हमारा कैश रुक जाएगा। सो इससे इंपैक्ट क्या होता है, जब भी फ्लो ब्रेक होता है मेरे पास इन्वेंट्री इकट्ठा होती है, मुझे ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, और जब रखा रहता है माल, बारिश आ गई, डस्ट आ गई, इधर से उधर हटाते हुए थोड़ा बहुत ब्रेक हो गया, डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो कैश फ्लो के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, हमको अपना फ्लो मेंटेन करना है। इन सब के बहुत इलैबोरेट तरीके होते हैं करने के, यहां मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं समझ आ जाए कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ऑल ऑफ दिस कैन बी डन इफ यू यूज द राइट मैकेनिज्म्स। अगर आप सही जगहों पर फोकस करते हो तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जा सकती है और कैश फ्लो भी कम इंप्रूव हो सकता है। और इसी में जो दूसरी स्ट्रैटेजी है कैश फ्लो की, वो है पुल शेड्यूलिंग। आपने कभी देखा है कि जब आप सुपरमार्केट से सामान खरीदने जाते हैं तो उनके पास एक गोडाउन होता है, एंड इन दैट गोडाउन देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल, बट सारी चीजें वो शेल्फ पे ला करके नहीं रख देते, वो शेल्फ पे थोड़ा सामान स्टोर करते हैं, और जैसे जैसे वो सामान खत्म होता जाता है वो उसको रिप्लेनिश करते रहते हैं। ये एक एग्जांपल है पुल शेड्यूलिंग का, और इसमें काफी सारी चीजें हैं, कानबान, सुपरमार्केट, स्पेड, इस तरीके के बहुत सारे टूल्स लगते हैं। आई विल नॉट गो इनटू वंस अगेन डिटेल्स ऑफ दैट, बट आप ये समझो, जब भी फ्लो ब्रेक होगा तो इन्वेंट्री बनेगी, वो इन्वेंट्री जरूरत से ज्यादा ना हो जाए उसके लिए एक स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें जितना जितना कस्टमर लेता जा रहा है हम उतना उतना रिप्लेनिश करते हैं, तो कभी भी हमारे कैश की रिक्वायरमेंट अचानक बढ़ नहीं जाएगी। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, अचानक अगर मेरे पास फुल शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास पुश शेड्यूलिंग है, तो आपको क्या दिखाई देगा, किसी किसी समय में ऐसा हो जाएगा कि आपके पास बिल्कुल कैश खत्म हो जाएगा, आपको बोरो करना है, और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जब आपके पास कैश बहुत अच्छा है और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको ये डर है कि अगर आपने ये कैश वापस कर दिया तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपके पास फिर से बोरो करने की जरूरत आ जाएगी, तो आप डबल प्रॉब्लम करने के बजाय आप उतने सारे कैश के साथ रहते हैं। फुल शेड्यूलिंग क्या करता है, आपको स्टेबिलिटी देता है कि जिससे आपका जो कैश फ्लो रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो ऊपर नीचे ना हो। तो ये दो स्ट्रैटेजीज होगी। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है कि डिमांड के लिए हमको फोकस्ड प्रोडक्ट करना है, अपनी डिमांड को फोकस करना है बाय टारगेट कस्टमर, बाय सेलेक्टिंग द राइट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एंड बाय डिफाइनिंग कि कस्टमर को वैल्यू में क्या चाहिए। कॉस्ट के लिए हमने 6 स्ट्रैटेजी देखी थी, जिसमें से हमें जो पहली 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हैं, जो कस्टमर को वैल्यू चाहिए उसको नॉन वैल्यू से अलग करना, उसको मेजर करना कि कितना मेरे ऊपर असर आ रहा है जिससे सारे लोग इंगेज हो सके, और लास्ट पीस उसको
स्टडी करके कंस्ट्रेंट निकालना कि क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रही है और उनके ऊपर एक्शन। उसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन है, उसके अलावा मिस्टेक प्रूफिंग है, विजुअलाइजेशन है, ये और 3 स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस करी। कैश फ्लो में हमने 2 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी। फंक्शनल लेआउट को हटा करके हमको प्रोसेस लेआउट बनाना, जिससे कि हम वैल्यू को फ्लो कर सके, इन्वेंट्री कम जनरेट हो, और पुल शेड्यूलिंग की इन्वेंट्री जब भी जनरेट हो एक सर्टेन लेवल से ऊपर ना जाए। तो पुल फ्लो क्या करता है, इन्वेंट्री को कम करता है, और पुल इन्वेंट्री को मेंटेन करता है, जिससे कि आपका फ्लक्चुएशन ना आए, आपके पास जो डेड पैसा पड़ा रहता है वर्किंग कैपिटल का, वो ना आए, वो फ्लक्चुएशन आपका मिनिमाइज करने की बात करता है। तो अगर मैं इसको सारे को इकट्ठा कर दूं कि इस सब का मतलब क्या है, कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, तो बड़े सिंपली ये 8 स्टेप्स हैं जिस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहला काम, आप ये डिसाइड करो व्हाट इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन। रिमेंबर, who, what, why. What is your value proposition? अगर आप ऐसे मार्केट में हो जहां पर कॉस्ट सेंसिटिव है और कॉस्ट आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप हमेशा उसमें मार खाओगे। जिसको डिजाइन चाहिए, यूनिक डिजाइन चाहिए, उसको अगर आप कॉस्ट का प्रोपोजिशन दोगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप रिलेट कर पाओ, कुछ समय पहले की बात है, जेट एयरवेज का वैल्यू प्रोपोजिशन था कि वो आपको हाई क्लास फ्लाइंग दे रहा है। लो कॉस्ट एयरलाइंस के आने के बाद उन्होंने सबके लिए सब कुछ करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा हम हाई भी देंगे, लो भी देंगे, एक स्ट्रक्चर में दोनों देना पॉसिबल नहीं था, वेंट आउट ऑफ बिजनेस। उसी जगह पर अगर आप देखो इंडिगो, उन्होंने अपना एक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाया और एग्जैक्टली उस वैल्यू प्रोपोजिशन पे टिके रहे। उनके लिए थिंग्स आर नॉट दैट बैड। मालूम है एविएशन सेक्टर में प्रॉब्लम है, अलग चीजें हैं, बट इट इज नॉट लाइक सम ऑफ दोस अदर थिंग्स। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिसाइड कि आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है क्या। उस प्रोपोजिशन के अराउंड आप अपना बिजनेस डिजाइन करोगे। कैसे डिसाइड करोगे, अगर मैं ये सबसे अच्छा दे सकता हूं तो इसके लिए मेरा क्या मार्केट होना चाहिए और मेरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो मुझे रखनी पड़ेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इन्वेंट्रीज और अकाउंट रिसीवेबल्स को भी कंट्रोल करना। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई एंड ब्रेक द कंस्ट्रेंट्स इन वैल्यू स्ट्रीम। सो आइडेंटिफाई एंड ब्रेक द कंस्ट्रेंट्स इन वैल्यू स्ट्रीम। इसका क्या मतलब है, पहले वैल्यू स्ट्रीम को स्टडी किया, उस वैल्यू स्ट्रीम में देखा कहां कहां पर, जैसे मैंने आपको रेड और ग्रीन से दिखाया था, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, किस कंस्ट्रेंट की वजह से आ रही है, एंड हाउ कैन वी ब्रेक इट। सो देयर आर टाइम्स फॉर एग्जांपल देयर वी फाइंड आउट कि मैं इसे बना करके रख रहा हूं क्योंकि जब मैं चेंज करता हूं प्रोडक्ट को तो उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं, तो मैंने उसको ऐसा काम बना रखा है कि मुझे बाद में जाकर के उसको डिफेक्ट को ठीक करना पड़ता है। जब मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला वही एक्टिविटी जो मुझे चेंज करने में 3 घंटे लगते थे, अगर मैं वो कंस्ट्रेंट को तोड़ करके 15 मिनट में कर सकता हूं तो मेरे पास डिफेक्ट नहीं बन रहा है। तो मुझे जो एक्स्ट्रा 2 लोग लगाने पड़े थे डिफेक्ट को ढूंढने के लिए और उसको काट करके सही करने के लिए, वो सारा चला जाता है। सो द होल प्रोसेस, या जो इसका हार्ट है या जो मेन चीज है, वो है वैल्यू स्ट्रीम में से कंस्ट्रेंट चुन चुन करके उनको तोड़ना, जिससे कि ओवरऑल कॉस्ट कम हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप, जितने कंस्ट्रेंट तोड़ सकते हैं तोड़ दिए। नेक्स्ट स्टेप, फ्लो बनाएं जिससे कि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा हो सके, आप कस्टमर को फास्टर प्रोमिसेस दे सके, तो कम पैसे में आपके पास डिमांड बढ़ सके। एंड फाइनली ये जो कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, ये फ्लक्चुएट ना हो, कभी कम कभी ज्यादा की रिक्वायरमेंट ना हो, इसको मेंटेन करने के लिए पुल को इंप्लीमेंट करें। लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये जान के चलिए, आपने देखा होगा कि जब मैंने वो रेड और ग्रीन आपको बैंड्स दिखाए थे, आई नेवर सेड कि सारा रेड एक बार में हट जाएगा, ऐसा होता नहीं है। कई बार हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी होती है पर वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। आप बहुत जगहों पर देखेंगे कि आज से कुछ समय पहले टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी बट वो इतनी एक्सपेंसिव थी कि हम उसको यूज नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल RFID, अगर आप देखोगे तो आज RFID बहुत बड़े स्तर पर यूज हो रहा है इन इंडस्ट्री 4.0। क्यों? क्योंकि आज उसकी कॉस्ट कम हो गई है। जब स्मार्टफोन्स आए थे तो उनकी कॉस्ट एक्सेसिवली हाई थी, हम नहीं यूज कर सकते। आज स्मार्टफोन इतने सस्ते में अवेलेबल है, इतने एप्स अवेलेबल है कि बहुत सारा काम जो हम फिजिकली करते थे हम ऐप पे ले आए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी आपके पास कंस्ट्रेंट्स ब्रेक करने के नए तरीके आ जाएंगे। तो लास्ट पीस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप ये कभी भी नहीं कहोगे कि अब मैं
ने सारे प्रॉब्लम्स हटा दिए, सब ठीक हो गया। ये चीज कंटिन्यू करनी पड़ेगी। बिजनेस है, ये कंटिन्यूअली चलता रहेगा। जब तक बिजनेस जिंदा है तब तक आपके कॉम्पिटिटर्स इंप्रूव करते रहेंगे और आपको भी इंप्रूव करना।